control structures. Yeah, just not to confuse with the output, input and all that we have done in the previous project. Yeah, so that's why I am switched there. So let's learn about the if syntax, which is already there. You already know about that. So check if a person can vote or not. Okay, let's take a simple example. So print enter age, and let us scan that age in a variable age of type integer, initially 0. Now we read using the, so I am using now shortcut age equal to read line, but read line returns a string, so I am going to convert it now here only, the output of read line. So it is, yeah, it's bit shortcut now, 2 lines of code in 1 line. Now I can check it using if age greater than equal to 18, then print, but you always need curly brackets. Curly brackets are always required whether you have 1 line of code or multiple line of code. So you cannot write code without curly brackets in the if syntax. Yeah, yeah, yes, you can vote. Okay. So yes, you can vote and you cannot vote. Sorry, message I have to change. You cannot vote. Okay. So let me run again and let me type the value of age. So let's 12. You cannot vote. And at 19, you can vote. Now let's take the syntax of while loop. The while loop is very it's similar to the while loop in any other language. So find print 1 to n using while loop. Okay. So we ask user to enter value of n and print 1 to n using while loop. So enter n, then n. Okay. Then we create a while loop. So again I take one variable I equal to 0. Yeah, but I'm trying a while loop here. While I less than n. Okay. And I equal to I plus 1, because there is no plus plus, so I equal to I plus 1, and I am printing the value of I. Okay, fine, print I. So it will print from 1 to n. So let me run. So n should be capital because the variable name is in capital. So age n. Now I have to type n, so I have typed here at. If n is at, then it should print from 1 to n. So there is no new thing in the while loop. Okay. Now there is some difference in the for loop. So let's, yeah. So plus plus is not available. So I have to use I equal to I plus 1.
Yeah, yeah. Okay, fine. Now for loop. So let's try find sum of first n values, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot n. Okay, so using for loop. Got it? So got that? What I want to do? I want to find sum of first n values. So n I already taken as input here. I am going to use this n. Okay. So let's use n itself, n on n. So है ना, so इसी n को हम यूज करने वाले हैं जो हमने पहले इनपुट में ले लिया था. हेलो, है ना. सो हम एक फोर लूप बनाने के लिए फोर आई वेरिएबल भी पहले से था, आई इन फोर. हाँ, फोर का जो सिंटेक्स होता है आपका, जो जावा का सिंटेक्स है, जावा सिंटेक्स इज फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ऐसा सिंटेक्स होता था. यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सिंटेक्स है. फोर आई इन 0 डॉट एन. सो 0 से n तक चलेगा फॉर लूप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट. ये स्टार्ट एंड एंड वैल्यू है. इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ. फर्स्ट टाइम कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी है, तो n यहाँ पर, सॉरी आई में यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ. मैंने यहाँ पर हेलो के साथ प्रिंट किया इसको. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आउटपुट दिख जाए. अब n की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर 9, तो अप टू 9 यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया फॉर लूप की हेल्प से, 0 से. लेकिन मुझे सम करना था, तो सम के लिए थोड़ा सा नया लॉजिक लगा लेते हैं. तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ. यहाँ पर एक सम वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0, और यहाँ लिखूंगा मैं सम इक्वल टू सम प्लस आई की जो भी वैल्यू नेक्स्ट आएगी वो सम में मैं ऐड करता जाऊंगा. तो पहले 0 सम होगा, फिर 1 सम होगा, फिर 2 सम होगा, वो ऐड होता जाएगा और फोर लूप के थ्रू. और फाइनली मैं लूप के बाहर आके सम की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ. ठीक है, तो मल्टीपल वेरिएबल्स, आप मल्टीपल वैल्यूज आप कॉमा के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, है ना. अब सम को मुझे डिक्लेयर करना था, डिक्लेयर करने के लिए मुझे वेर कीवर्ड लेना पड़ेगा, वो मैंने मिस कर दिया था. सो एज की कुछ पुरानी वैल्यू देना है. एन की मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पर 12, तो 12 तक का टोटल सम मुझे मिल गया. फिर मैं रन करता हूँ, एक नई वैल्यू देता हूँ इसको. मैंने दे दिया यहाँ पर 5, तो 5 तक का सम हो जाएगा. ठीक है, सो ये बहुत बेसिक आइडिया हमने लिया यहाँ पर. फोर लूप देखा, वाइल लूप देखा, फोर के और भी सिंटेक्स हैं यहाँ पर, वो हम समझ लेते हैं. अभी आपकी बाय डिफॉल्ट स्टेप्स जो होती है, यूर स्टेप्स इंक्रीज बाय डिफॉल्ट बाय 1. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट बाय 1 इंक्रीज होती है, जबकि अगर आपको 2 से इंक्रीज करना हो तो क्या करोगे. तो उसके लिए चेंज फोर लूप स्टेप्स फ्रॉम डिफॉल्ट 1 टू एनी अदर लाइक 2 और 3. ओके, तो फॉर दैट पर्पस लूप हमारा हो जाएगा 4
I in stride function is there, stride function is there, and there we can write here three things. From means 0, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1 to n by step of, let's say step of 3. So by default इंक्रीमेंट किससे होगा, 1 1 1 के बाद नेक्स्ट 1 + 3 4, देन 3 + 4 + 3 7, 7 + 3 10, ऐसे ही आएगा. सो इंक्रीमेंट 1 से होता था, अब उसकी बजाय किससे होगा, 3 से. हाँ, फर्स्ट के बाद 3, फर्स्ट में 3 ऐड होगा तो 4 पे जंप करेगा. इंक्रीमेंट वैल्यू 3 होगी, मतलब अभी i = i + 1 कर रहे थे, यहाँ पर डिफॉल्ट i = i + 1 हो रहा था, अब यहाँ i = i + 3 होगा. तो 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा. फिर 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा. ठीक है. सो इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको यूजिंग अदर स्टेप्स. यूजिंग स्टेप्स ऑफ 3 हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर i की वैल्यू. मैं फिर से रन कर देता हूँ. n की वैल्यू तो हम यूजर से ले ही रहे हैं, मैंने यहाँ पर अब की बार 20 ले ली, तो पहले 1 आया, 4 7 अप टू 19 तक गया, क्योंकि 19 + 3 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और वो इस रेंज में आएगा नहीं क्योंकि n से बाहर निकल जाएगा. हाँ, तो हम फोर लूप से बाहर आ गए तो 20 तक ही जाएंगे, 20 या 20 से लेस तक जाएंगे. ठीक है. तो एक्स अदर स्टेप्स भी आप यहाँ पर कर सकते हो, है ना. और रिवर्स फोर लूप अगर लगाना है तो उसको भी हम देख सकते हैं. सो टू क्रिएट अ रिवर्स फोर लूप वी राइट हियर 4 i in 1 ... n. हमने एक रेंज बना दी, और रेंज बनाने के बाद में इस रेंज को ऐसे ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, और डॉट रिवर्स करके एक फंक्शन आता है, वो कॉल कर लिया. ठीक है. तो रिवर्स फंक्शन उसको रिवर्स कर देता है. ओके. तो ये हमने बहुत बेसिक आइडिया यहाँ पर लिया है कि रिवर्स फंक्शन कैसे काम करता है. अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ. थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट दिखे थे, रिवर्स लिखा फिर i की वैल्यू, तो i की वैल्यू अब n से शुरू होगी और 1 तक जाएगी. ठीक है. मैंने 23 लिखा n की वैल्यू, तो आप देखोगे 23 से स्टार्ट हुई है i की वैल्यू, और ये 1 तक आई है. ठीक है. तो हमने बहुत बेसिक आइडिया ले लिया यहाँ पर. एक छोटा सा और मैं सिंटेक्स दिखा रहा हूँ स्विच का, फिर हम सेशन को एंड करेंगे. ठीक है. तो स्विच कैसे काम करता है उसको हम एग्जांपल. स्विच क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा, और है ना, जैसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल में से एक सिलेक्ट करना है तो स्विच केस यूज करते हैं, है ना. तो स्विच केस भी यहाँ वैसे ही है. जैसे मैं लिखा एंटर डे नंबर 1 for मंडे, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना. 1 for मंडे, 2 for ट्यूसडे, एंड सो ऑन, है ना. तो हम उसको एक डे वेरिएबल में लेते हैं, वेरिएबल डे इक्वल टू इंटीजर में रख लेते हैं, टाइप कास्ट करके रीड लाइन को यूज. नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखा नहीं रहा हूँ आउटपुट. अच्छा आ रहे हैं.
हाँ लाइन एग्जीक्यूट पूरा हो रहा है, क्योंकि वो एक ही प्रोग्राम माना जाएगा स्टार्ट से। और तो वो दिख नहीं रहा था इसलिए। हाँ नहीं नहीं वो आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है आ रहा है, मैं आपको उतना दिखा नहीं रहा था। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पूछा उससे डे, एंटर डे, उसने दिया। अब मैं स्विच केस यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्विच में वही स्विच, आप डे पर, डे वेरिएबल पर स्विच लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद वही ब्रैकेट्स, फिर केस 1, फिर आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया मंडे, एक लाइन पे कर दिया, और दूसरी लाइन पे आपने प्रिंट कर दिया ऑफिस डे। ठीक है, ऐसा कर दिया आपने। फिर आपने केस 2 लिया। अब यहाँ पर एक सोच समझने वाली बात, केस 1 के बाद केस 2, अब ब्रेक जो रहता है, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रेक इज ऑप्शनल। सो ब्रेक आप लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी क्या है वो, सेमीकोलन का कहीं भी यूज नहीं कहीं यूज नहीं है। सेमीकोलन हटा दिया इस लैंग्वेज ने, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट, सॉरी जो नई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आई हैं वो सेमीकोलन को फॉलो नहीं करती अब। बिना एक हाँ, काफ़ी लैंग्वेजेस में नहीं है अभी, नहीं आने वाली लैंग्वेज में। अपन तो iOS के डेवलपमेंट में यही सब यूज करेंगे। हाँ, iOS के डेवलपमेंट में यही यूज़ करेंगे, तो इसमें है नहीं, है ना। ठीक है, सो कॉटलिन में है क्या? कॉटलिन में है सर। है, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉटलिन जैसा ही लगेगा थोड़ा सा अब आपको। हाँ शॉर्टकट है। ठीक है, अभी यहाँ पर अब हम लोग छोटा सा ट्राई कर, तो ये है, ब्रेक नहीं लगाओगे तो चलेगा। फिर केस 2 लिया, केस 2 में मैंने ट्यूसडे लिख दिया। ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं लिखा, ट्यूसडे लिख दिया, और मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया। ऐसे सारे केसेस बना सकते हो आप, है ना। तो मैं फास्ट बना देता हूँ, दो केसेस ही ठीक है। 2 केसेस ही ठीक है। ठीक है, अब मैंने केस सीधे 3 कर दिया, यहाँ पर वेडनेसडे लिख दिया। मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने सीधे केस, उसके बाद केस आपने यहाँ पर दे दिया 6। केस 6 क्या होता है? सैटरडे। और सैटरडे में आपने, सैटरडे के बाद लिख दिया आपने वीकेंड, कि सैटरडे आपका वीकेंड होता है, लेट्स से एक एक्स्ट्रा लग दिया आपने वीकेंड। ठीक है, और 7 क्या होगा आपका? संडे। और यहाँ भी आपको वीकेंड ही लिखना है, ओनली वीकेंड लिखा, ओके। फिर एक डिफॉल्ट जरूरी है, यहाँ पर डिफॉल्ट कंपलसरी होता है। हाँ, डिफॉल्ट कंपलसरी होता है, डिफॉल्ट कंपलसरी होता है, उसमें एक ना एक आपका आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। अब ये सॉरी, रीड लाइन में मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन लगाना भूल गया था, तो इसको हम रन करते हैं, डे इनपुट में देते हैं और ये देते हैं। तो ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं लगाना, ब्रेक ऑटोमेटिक लगता है। अब मुझसे डे पूछ रहा है वो, मैंने डे में यहाँ डाल दिया 3, तो 3 डालूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? आ गया। और मैंने यहाँ पर अगर 7 डाला तो वीकेंड है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है जो मैं बताना वाला हूँ आपको, वो क्या है? यहाँ पर आप जैसे वीकेंड यहाँ भी लिखा है और वीकेंड यहाँ भी लिखा है, से केस 6 में भी वीकेंड लिखा है, केस 7 में भी वीकेंड लिखा है। आपको लगता है कि अगर केस 6 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और इसमें वीकेंड नहीं लिखा है, और अगर केस 6 एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके पीछे पीछे 7 भी अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए? हाँ, दो कंडीशन हाँ एक साथ हो जाए, कि अगर 6 हुआ है तो 6 का कोड तो चले ही चले, और उसके चलने के बाद 7 का कोड उससे कंबाइन हो जाए। तो उसके लिए एक स्पेशल सिंटेक्स दिया है, फॉल थ्रू।
अब जावा में और अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अपने आप चलता है, नेक्स्ट अपने आप चल जाता है। और यहाँ ब्रेक की जरूरत नहीं है। तो खुद ही ले लेगा। हाँ, ब्रेक यहाँ ऑटोमेटिक है। तो उस ऑटोमेटिक ब्रेक को हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, फॉल थ्रू। तो फॉल थ्रू लिखने से क्या है कि 6 अगर आप चलाओगे तो 7 अपने आप चलेगा। देखो मैं रन कर रहा हूं, मैं रन किया, अगर मैं सिर्फ 7 डालूंगा, सिर्फ 7 डालूंगा तो सीधे 7 पे जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने 6 डाला, अगर मैंने 6 डाला तो 6 पे जाएगा पहले, और फॉल थ्रू की वजह से 7 पे भी जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ, तो इस तरह से स्विच केस काम करता है। तो स्विच केस में एक ही नई चीज है कि ब्रेक ब्रेक बाय डिफॉल्ट है, और ब्रेक को आपको यूज नहीं करना है तो फॉल थ्रू यूज करिए। तो ये स्विच केस का सिंटेक्स हो गया। एक नई चीज मैं बता रहा हूं कि स्विच केस में हम यहाँ पर अभी इंटीजर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, एनमरेशन हम आगे पढ़ेंगे, एनमरेशन भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं। आपका स्विच केस सभी डेटा टाइप पे काम करता है यहाँ पर, ठीक है। सो आई हैव गिवन बेसिक आइडिया ऑफ बेसिक कंट्रोल्स, है ना। अभी कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एक असाइनमेंट में स्काइप पे ड्रॉप कर दूंगा आपको, तो उसको ट्राई करना फ्री टाइम में, ठीक है। तो कल फिर हम लोग इसका वीडियो भी ड्रॉप कर देंगे, वीडियो में मैं ड्रॉप कर दूंगा। डाउन कर लूंगा तो एक बार में तो बात हाल हो जाएगा। हाँ, तो कल